Hello everyone. Today we will discuss about the poem Ulysses written by the great poet Alfred Lord Tennyson. Introduction of the poem. This poem was a poem in blank verse written by the Victorian poet Alfred Lord Tennyson, born in 1809 and died on 1892. This poem was written in 1833. This poem was published in 1842 in his well received second volume of poetry. Ulysses by Alfred Lord Tennyson was written in the aftermath of a close friend's death, that's Arthur Hallam. An often quoted poem, it is a popular example of the dramatic monologue like Browning's My Last Chase. Facing old age, mythical hero Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom, Ithaca. After his far ranging travels, his reunion with his wife Penelope and his son Telemachus, Ulysses yearns to explore again. He did not want to stay at home and he wants to do new even in his old days. Background of the poem. The character Ulysses in Greek Oedipus जिसे कहा जाता है has been explored widely in literature. The adventures of Odysseus were first recorded in Homer's Iliad and Odyssey, written 1800 and 1700 BC. Tennyson draws on Homer's narrative in the poem. Most critics find that Tennyson's Ulysses recalls Dante's Ulysses in his Inferno, written in 1320. In Dante's retelling, Ulysses is condemned to hell among the false counselors, for his pursuit of knowledge beyond human bounds and for creating the deception of the Trojan horse. Then in this poem, the king Ulysses has been away to the Trojan War for a long time. He led a life of adventurous. He has now returned to his own kingdom, Ithaca. He has now again taken up his duties as king of his country, Ithaca. His domestic life is quite peaceful, but he soon feels bored with his homely settled life. He is a man of action. He cannot rest and be happy at home. So, let's start the poem. It little profits that an ideal king, by this still heath among these barren crakes, marched with an aged wife, I met and dole unequal laws unto a savage race. जो किंग है यूलिसिस वो मेडिटेटिंग कर रहा है कि घर पर एक आइडियल किंग की तरह बैठे रहना उसके का कोई मतलब नहीं है. वाई दिस स्टिल हीथ, इस भट्टी के पास, अमंग दीज बैरन क्रेक्स, कि जो यूलिसिस का जो किंगडम था इथाका वो बैरन क्रेक्स के ऊपर था. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, जो उनकी वाइफ है वो भी ओल्ड हो चुकी है, पेनेलोप. आई मेट एंड डोल, मैं ऑर्डर देता हूँ अनिक्वलोस को, अनटू ए सेवेज रेस. ही कॉल्ड हिज पीपल ऑफ हिज किंगडम अनसिविलाइज्ड पीपल. तो जो किंग है वो अब अपने घर से ऊब चुका है. He did not want to stay at his home anymore.
that hoard and sleep and feed and no not me. वो अपने पीपल के लिए बोल रहा है कि जो उसके किंगडम के जो लोग हैं वो केवल खाते हैं, सोते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। एंड नो नॉट मी, और वो मुझे जानते तक नहीं हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फॉर ट्रैवल, मैं ऐसे रेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग इन माई लाइफ। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं लाइफ को ड्रिंक करना चाहता हूँ टू द लीज। लीज का मतलब आखिरी बूंद तक, मतलब जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती है, मृत्यु नहीं आ जाती है, जब तक मैं अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता हूँ। ऑल टाइम आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, कि जितना भी टाइम मैंने गुजारा है उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। जब मैं युद्ध में था तब भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, मैंने सफ़र भी बहुत ज़्यादा किया है। बोथ विद दोज, उन लोगों के साथ, दैट लव्ड मी, जो मुझे लव करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। जो किंग है यूलिसिस, वो अपने लोग जो उसके साथ साथी थे कॉमरेड्स, उनके लिए बोल रहा है कि उन लोगों ने और मैंने खूब एंजॉय भी किया है, सफ़र भी किया है। एंड अलोन ऑन शोर, और अकेले भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है शोर पर, शी शोर पर। एंड व्हेन थ्रू स्कूडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइट्स बैक्स द डिम सी, जब तेज़ बारिश हो रही थी, द रेनी हाइट्स, और जो स्टार है वो भी वैक्स हो गया था डिम सी में, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आई एम बिकम ए नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंग्री हार्ट, मैं एक नेम बन चुका हूँ, मैं फेमस हो चुका हूँ, जो हमेशा ही ट्रैवलिंग करता रहता हूँ एक हंग्री हार्ट के साथ, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूँ। कुछ भी जो मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है जिसके बारे में। मच एव आई सीन एंड नोन, बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने सुना है, बहुत कुछ जाना है। सिटीज़ ऑफ मैन, बहुत सारे शहरों में मैं गया हूँ, वहाँ के लोगों से मैं मिला हूँ। मैनर्स, वहाँ की जो कल्चर है उसको मैंने देखा है। क्लाइमेट्स, वहाँ की जो क्लाइमेट्स है, जोग्राफिकल एटमॉस्फेयर है, उसको देखा है। काउंसलिंग, वहाँ के जो काउंसलर्स हैं, गवर्नमेंट्स है, सबको मैंने देखा है, उनके बारे में जाना है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ ऑल दैम, कि उन्होंने ना केवल मुझे जाना बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और मैंने बैटल के डिलाइट को भी एंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। पियर्स, वो अपने साथियों के लिए बोल रहा है। अपने साथियों के साथ जब मैं ट्रोजन वार में था तब भी मैंने वहाँ पर बैटलिंग करते हुए खूब एंजॉय किया है। सो दीज आर द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम। वी विल डिस्कस नेक्स्ट लाइन्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।